ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। Very frankly, we have been traveling throughout the country campaigning. We also have a sense of what the reality is on the ground. We're very happy to wait and see what the votes actually tell us. I mean, exit polls are deeply unscientific. We all know this. I think last year the majority of exit polls got the results wrong in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan. These things happen. I mean, so to my mind, what we are interested in is the real poll. That is the ballots, the votes of Janta Janardhan, which is going to determine our political future. So today is the first. We'll wait till the 4th and then we can talk. Thank you. Most of the exit poll have predicted that they are going to get the seats in the southern state where they Listen, I am... even in your state, sir. Yeah. I am quite confident that is not going to be the case. I don't believe that... I've not seen these polls because I've been on stage at the function that you've been here for. But I can say that, to my mind, the only poll that matters is what actually went into the machines when people press the button. And I think we'll have to see those before we come to any reaction. I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. But again, let's wait. We'll find out soon enough in 3 days' time. All the exit polls across the channels, across the polls agencies, the exit poll agencies are clearly saying the third term for the... Well, why are you surprised? This is what we kept telling you, that these are Sarkari exit polls. This is what they are going to show. Just as they showed what they showed in 2004, and they were proved completely wrong. So, just take this with a big pinch of salt and take it as an source of entertainment. Well, these are exit polls. If you recollect, they didn't even give Congress a chance in Karnataka earlier. Let us wait for जनता का पोल देखेंगे. 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा तब असली पोलिंग का डेटा आएगा. जनता किसको दिया है आशीर्वाद तब पता चलेगा. ओके, अभी आप लोग इंडिया अलायंस लीडर्स में कांग्रेस नेता प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से इंडिया अलायंस विल विन at least 295 seats. We are supremely confident. We have spoken about progressive politics. We have spoken about how we will get economic stability into households. We have spoken about employment. We have spoken about how we will reduce economic inequality, what kind of foreign policy we will have. We have spoken about progressive ideas that will build the nation for the next couple of decades. So I'm sure that the people of India have voted for the India bloc. So Revant Reddy says Rahul Gandhi will be next PM of India. He will be a PM from India Alliance. We are very clear that since we are the majority partners for the India Alliance, our leader from the Congress party is going to be Mr. Rahul Gandhi. But whatever needs to be decided will be decided later with all the alliance partners and the High Command. Like I said, exit polls, people are free to decipher whatever they want from exit polls. We have no control over it. But in Karnataka will be getting more than 18 seats is what the CM has said, Deputy CM has said, and the party in the state also thinks the same. किसी भी एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, न तो उनको निराश करना चाहते हैं. 3-4 दिन की खुशियां हैं, एग्जिट पोल को भी मनाने दीजिए. 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का एग्जिट पोल देश की जनता ने दिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में. इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें पा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. लेकिन अब ये सब हम किसको कहें
क्योंकि जिस प्रकार मीडिया, गोदी मीडिया, एग्जिट पोल सब भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का खास करके महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। 48 में से कोई भी सर्वे या कोई भी एजेंसी बीजेपी और एनडीए को बढ़त बनाते नहीं दिखाई दे रही। सब यही दिखाई दे रहे हैं कि सब यही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की धूम मची है। खास करके मशाल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी अच्छा गेन कर रही है। यह सब देख के लोग बौखलाए हुए हैं, लेकिन हम उनकी बौखलाहट पे ज्यादा पानी नहीं फेरना चाहते। आज 1 जून है, 4 जून को रिजल्ट आ ही जाएगा। 3-4 दिन उन्हें भी मौज करने दीजिए, उसके बाद उनके नसीब में मौज करना नहीं लिखा है। फिर एनडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष में बैठने वाले हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि इंडिया गठबंधन की बुरी हार हो रही है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे होगी। प्रधानमंत्री जी, आप किस मुंह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं? क्या आपको अनुप्रिया पटेल का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? क्या आपको ओम प्रकाश राजभर का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? क्या आपको जीतन राम मांझी का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? क्या आपको ये जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, उनका परिवारवाद दिखाई नहीं देता? भ्रष्टाचार पर बात करें तो क्या आपको अजीत दादा पवार का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता? आपको हेमंत बिश्व शर्मा का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता? आपको शुभेंद्र अधिकारी का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता? महाराष्ट्र में 70 से ज्यादा नेता जो इस समय आपके साथ हैं, उनका भ्रष्टाचार आपको दिखाई नहीं देता? आप कैसे ये ट्वीट करते हैं? अभी अभी आप मौन और ध्यान से आए हैं। एग्जिट पोल देखकर इतने उत्साहित मत हो जाइए। कभी कभी उत्साह ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि आप उत्साहित नहीं, अति उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपको तो ये 3 दिन और ध्यान करने की आवश्यकता है। आप ध्यान करिए, मौन रहिए, क्योंकि आप 4 जून के बाद पूरी तरह से विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाएंगे। विपक्ष का नेता बनाने के लिए आपको 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के लोगों में भगदड़ मचने वाली है। एनडीए में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। 38 से ज्यादा दलों को लेकर एनडीए बनी है, उसमें बहुत बड़ा बिखराव होने वाला है। इसके लिए दूसरों को ज्ञान मत बांटिए, अपने ज्ञान की वृद्धि करिए। और ये जो एग्जिट पोल है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाते हुए सिर्फ यही शुभकामना दूंगा कि आप 4 जून तक उत्साहित रहें। उसके बाद इंडिया गठबंधन उत्साहित होगा और आप निरुत्साहित होंगे।